Hello and welcome. Very good afternoon. Thanks for joining us here on The Big Story. I'm Afrida Rahman Ali, getting you all the updates today, and also we'll have expert opinion and reactions on how this situation could have been handled better. But first, all the ground inputs. And well, the big update right now is that farmer groups are now being allowed to enter into Delhi to hold peaceful demonstration. Delhi police has finally relented and farmers are being allowed to enter the national capital for a planned protest march against the farm laws after a massive showdown which we've been witnessing since morning, both at the Delhi-Haryana border and also in some parts of the Delhi UP border. Farmers have now been permitted to protest at a ground in Burari area. Earlier in the day, cops used water cannon and tear gas shells at the protesting farmers to disperse the crowds. The farmers refused to budge. Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh has welcomed the centre's decision and has said that the farmers' concerns must be immediately addressed. So we're going to get you more inputs from ground on the latest situation. The big update, of course, is going to come as a respite and relief for farmers who are agitating at the moment and who want to enter the national capital. They simply want to be heard and they are registering their protest against the new farm laws. They're asking for the MSP to be made a legal obligation. They also want a continuation of the APMC system. Their fear is that if both these things are obliterated, it would hurt the interest of the small and marginal farmers in particular. And therefore, the farmers are out in protest in several locations. But right now, the biggest update is that Delhi police has agreed that a planned march can be allowed and a certain area in the Burari area has been demarcated for the farmers to hold a peaceful demonstration. Alok is joining me now with more input. So Alok, tell us, what is it on ground? Has the news spread? Has the message reached the farmers that they are being allowed to conduct a planned march and sit in protest in the Burari area? Afrida, there are 500 organizations of farmers who are protesting and doing this protest march towards the national capital and making a consensus on among all these 500 organizations is not at all possible, because remember, the farmers have demanded to reach to the Parliament Street, there where the Jantar Mantar is located, or to the Ramlila Maidan. These two places are located very close to the parliament, and they are feeling that if they reach to that place and they conduct, if they do the sit-in protest, then their message will be reaching to the central government. But now the government is Delhi, now the central government and the Delhi police is allowing them to move to the national capital, but not towards the parliament. And in fact, if we see, the parliament is located around 30 kilometers away from Burari. So definitely it's a long distance. If they are allowed to go to the Burari, there is a Nirankari Bhavan, and the Nirankari Bhavan has a huge ground where the farmers can do their sit-in. So the consensus is still being made, negotiation is still being done. There are some farmers organizations are ready to do that, but many farmer organizations are still not ready to go to Burari. They want to do the sit-in only in Ramlila Maidan. So this is what the situation is. In fact, what my video channel is showing you, that there are farmers, there is negotiation is going on. Some farmer group has already come over there, and they are speaking on the mic and the speakers so that the voices could reach to the farmers who are protesting. And in fact, some are not at all ready to listen to them. So this is what the situation is. Police has already given them the permission to go in the national capital, but not towards the parliament. This is what the police is saying. But I would like to show you what's all going on over here. One side the negotiation is going on. Other side you can see the farmers are in fact covered all over this street. This road is completely covered with the farmers. These farmers are coming from Punjab and various districts of Haryana. More than 10,000 farmers are here,
those who are in fact come over here with their rations, with their clothes, because they are wanting to meet the government, they are wanting to do the sit-in, they are wanting to do the dialogues as well, but not before that. Once they will get the place to do the sit-in in the national capital, then only the conversation and the dialogues will be started. But right now the negotiation is going on over the Burari issue, which we have already telling to our viewers. Back to you. Yes, absolutely. So that's the big update that Alok is bringing us, that yes, there is some amount of relenting on the part of the central government, allowing the farmers to sit in protest in a designated area in the Burari area of the national capital. However, Alok also pointing out that many farmer groups may not actually accept and approve of that, since they would like to be protesting closer to the Parliament Street, either in Ramlila Bhavan or in the Jantar Mantar, which are, of course, again, the well-known protest grounds. I have with me now, joining me this afternoon here on The Big Story, Gopal Krishna Agarwal, who's a national spokesperson for the BJP, and also Abhimanyu Kohar, who's a national coordinator of the Rashtriya Kisan Mahasangh. In fact, Abhimanyu is right there on ground at the moment, is what I understand. I want to first quickly go across to Abhimanyu Kaur to get an understanding on whether they are agreeable to this offer that is being made. Abhimanyu ji, आप बताएंगे क्या आपको मंजूर है ये कि बुरारी में आप सिट इन प्रोटेस्ट करें? डेजिग्नेटेड एरिया की आपकी मांग थी, वो मांग आपकी सुन ली गई है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक तरफ प्रशासन ये कह रहा है कि वो बुराड़ी में वो निरंकारी मैदान में हमें जगह दे देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वही प्रशासन बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है। तो ये जो पैरेलल दो चीजें की जा रही हैं प्रशासन द्वारा, ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती हैं प्रशासन की, सरकार की नीयत को लेकर। तो एक तरफ तो वो जगह दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ऊपर लठ बरसा रहे हैं वो। और जहां तक बात रही कि ये स्थान स्वीकार्य है हमें या नहीं है, तो ये जो इस पूरे आंदोलन की जो 7 सदस्यीय कमेटी बनी है, वो भी चर्चा कर रही है और उसके बाद ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जैसा भी फैसला हमारे सीनियर लोग, वरिष्ठ लोग लेंगे, उसी अनुसार हम आगे इस पे बढ़ेंगे। जी, तो कुछ समाधान हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की जो एजिटेशन है वो अभी दैट विल कम टू एन एंड, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ पीसफुल रेजोल्यूशन। बट गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जानना चाहूंगी आपसे कि क्यों इस तरह के जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उन पे फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया? किस तरह का इमेज बनता है आपकी सरकार का? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप किसान विरोधी नजर आ रहे हैं जिस तरह से आपने हैंडल किया। पहली बात ये कि इस तरह के गुस्से को आपने पहचान नहीं की सही वक्त पर, यू डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न्स, थिंग्स केम टू दिस लेवल ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम्स एंड नाउ यू हैव दिस एडिशनल बर्डन ऑफ हैंडलिंग अ क्राइसिस एंड एन एजिटेशन ऑफ दिस नेचर। देखिए अफरीदा जी, 2-3 चीजें यहाँ पे स्पष्ट होनी चाहिए। अभिमन्यु जी और भी कई, मैं कल से अलग अलग चैनल्स पे बैठा हूँ। एक तो ये जो एमएसपी और इसको लेके जो भ्रम फैला हुआ है कि ये तीनों बिलों से एमएसपी को हटा दिया जाएगा, जिसके कारण ये एजिटेशन इतना विकट रूप लेने का प्रयास कर रहा है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। इन तीनों बिलों की डिमांड जो है कि हटाने की, उसमें एमएसपी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है कि किसानों की मांग एमएसपी को लीगलाइज करने को लेके है या इन बिलों को हटाने का है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग विषय हैं। और दूसरी बात यह है कि यह जो सारा एजिटेशन है यह कांग्रेस और अपोजिशन के द्वारा प्रायोजित है, पंजाब से निकल के चल के आ रहा है, जहां पे ये मिडिलमैन, ये जो बिचौलिए थे, उनके फंडेड और फाइनेंस्ड आंदोलन है। क्योंकि बाकी प्रदेशों में ये जो तीनों बिलों का स्वागत किया जा रहा है और कहीं भी कोई ऐसा बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए, किसानों की समस्या हम समझ रहे हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं, और यही तीनों बिल उनकी सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे, यह भी हम नहीं मान रहे। लेकिन जो उनकी समस्याएं, उनको वो अगर इस बिल से कुछ लोग, उनके लीडर जोड़ के केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, वह केवल राजनीतिक लक्ष्य के अनुसार हो रहा है। दूसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि
कोई भी किसान या आंदोलन, कोई अगर 3 तारीख को जो हमारे मंत्री जी ने उनको बुलाया कि पहले से ही तय था कि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए हम तैयार हैं और उनकी जो भी समस्या है उनको सुन के हम रिजॉल्व कर देंगे। अगर कोई चीज ऐसी होगी कि उनकी समस्या जो हम मानने वाली होगी इन बिलों को लेके, तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो फिर 3 दिसंबर के पहले ये इतना बड़ा एजिटेशन करना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके आयोजकों की भ्रम की स्थिति हो सकती है या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की पॉलिटिकल इश्यूज की बात है। तो यह बातें बहुत महत्वपूर्ण थी जिसको लेके यह जो अभी दुविधा की स्थिति थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि इन्होंने पीसफुल है तो इतनी तैयारी जिस तरह से करके लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड एजिटेशन है, उस पे मैं अभिमन्यु जी का रिस्पांस चाहूंगी, बट बिफोर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली डिप इनटू द अपडेट दैट हैज जस्ट कम इन विद राहुल गांधी रिएक्टिंग टू दिस सिचुएशन. लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट द ट्वीट पोस्टेड बाय राहुल गांधी. Well, so there you have, I'm not able to just locate the tweet right now immediately. As soon as I see it, we'll just talk about it. But in the meanwhile, let me go across to Abhimanyu Kohar. Abhimanyu Kohar ji, ये जो आपको जो कहा जा रहा है इस वक्त कि ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, 3 दिसंबर की डिस्कशन और मीटिंग ऑलरेडी लाइंड अप है, तो क्यों आपने उससे पहले इस तरह का एजिटेशन खड़ा किया पैंडेमिक के वक्त? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं. देखिए, जो ये कृषि कानूनों के कितने नुकसान हैं ये हमें मालूम है, तो ये हमें गोपाल प्रसाद जी से इसकी क्लास लेने की हमें जरूरत नहीं है. जब ये 5 जून 2020 को आए थे, उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को कई बार खत लिखा, 6 जुलाई को पूरे देश में ज्ञापन दिया, उसके बाद जगह जगहों पे हमारे ट्रैक्टर मार्च शुरू हुए और ये झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में है ये. अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका में पूरे कर्नाटक को ग्रामीण बंद आयोजित किया गया था. अभी हमारे तमिलनाडु के 300 किसान जो ट्रेन में आ रहे थे उनको उतारा गया मंगला एक्सप्रेस से, उनको अरेस्ट किया गया वहां पे तमिलनाडु के किसानों को. केरल के जो किसान आ रहे थे उनको अरेस्ट किया गया. हमारे मध्य प्रदेश के किसान आ रहे थे उनको आगरा में रोका गया, ग्वालियर में रोका गया, उनको मुरैना में उनकी गिरफ्तारी की गई. हम दिल्ली में हमारे कल 720 किसानों को गिरफ्तार किया गया, इसमें राजस्थान के भी किसान थे, हरियाणा के भी थे, मध्य प्रदेश के भी थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, छत्तीसगढ़ के भी थे, केरल के भी थे, सब जगहों के, कर्नाटक के भी किसान थे. तो ये गलत बात कह रहे हैं, ये गलत चीज फैला रहे हैं कि सिर्फ एक राज्य है पंजाब पे किसानों का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और दूसरी बात जो कांग्रेस की कर रहे हैं, देखिए ये आंदोलन आता है तो पराजित होता है. So there is a very strong word coming out of the opposition parties also saying सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती. मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होगी और काले कानून वापस लेने होंगे. So this is the word coming out of राहुल गांधी. गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इस पे आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये जो है आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मामला बन गया है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पंजाब फार्मर्स, एज यू वुड नो probably, has a massive contribution in terms of the wheat and paddy crops. In fact, if you look at the data, even as we speak, and the data I'm going to read out from this year, out of the total purchase of 307 lakh metric ton, Punjab alone has contributed 202 lakh metric ton, 65% of the total procurement. तो पंजाब के किसान क्यों नहीं अपने हक के लिए लड़ाई करें? क्यों उनकी सुनवाई ना हो? Why should they not ask for what is due to them, and why are they not being considered as the biggest stakeholders in any of these decisions? Afridi, you raised a very important point, is that you said 202 metric ton of food grains have already been procured from Punjab, which is constitutes 65% of the total procurement from the all India. And what is this? This is 20% higher than the last year. So now your own question is that when the procurement on MSP has increased by 20% from the last year, then why the farmers are protesting? They are saying that MSP is being removed, and now your own figure shows clearly
that till yesterday, 26 November, we have procured more than 200 metric tons of food grain from Punjab only, and which is 20% higher than the last year. So that shows that no MSP is going away. Second thing is the cabinet decision 2-3 days back. Is this just the beginning? The fear is not that the farmers will not benefit immediately. The fear is that in the long run, when the corporate giants take over, the fear is that in the long run, MSP will be obliterated and the APMC will become redundant. Sure enough, in the immediate context, there will be some benefits to reap. The government wants to prove a point. अभिमन्यु कौर जी, आप जवाब देंगे इसका, क्योंकि जो है हम देख रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट तो इस साल बहुत ज्यादा हुआ है पंजाब में, तो आप सरकार को दोषी कैसे मान सकते हैं इसमें? देखिए, आप अब की बार देखिए, मूल तौर पे ये जितने भी खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मालूम होता है कि जब मार्च अप्रैल में जब गेहूं की हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद आने वाले समय में दिवाली के आसपास गेहूं का रेट हमेशा 100 से 200 रुपया क्विंटल बढ़ता है। यानी जो 1925 रुपया था, वो अमूमन आके 2100-2200 रुपया क्विंटल आना चाहिए था दिवाली के आसपास। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, ये मैंने अपने पिछले 15-16 साल में पहली बार ये देखा है, जब से हम सामाजिक जीवन में हैं, कि दिवाली पे अब की बार गेहूं का रेट 400 रुपए नीचे गिर गया था। बाजरा जिसका एमएसपी 2150 रुपया है, बाजरा 1100 रुपए क्विंटल बिका है। गेहूं जो मोटे वाली धान है, उसका सरकारी रेट 1868 रुपया क्विंटल है, वो 800 से 900 रुपया बिका है। अब 11-21 जो वैरायटी वाली धान है, आप उसका देख लीजिए रेट, वो तो उसका एमएसपी उसका डिसाइड नहीं होता है, लेकिन वो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम रेट बिकी है। तो जो इसमें मूल बात है, ये जो हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं भाजपा के, ये कह रहे हैं एमएसपी जारी रहेगा। अरे भाई, अगर सरकार की नीयत और नीति साफ है तो इसी बात को लिखित में दे दीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है? जो बात आप भाषणों में कह रहे हैं, उस बात को आप लिखित में दे दीजिए, ये सारा विवाद खत्म हो जाएगा। और आपको 3 कृषि कानून, देखिए, ये जो कृषि कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला, ये किसान को अपने ही खेत में मजदूर बना देगा। जो आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया है, ये आपने इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। और जो एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो ये कानून इन्होंने पूरे देश में लागू किया है, ये 2006 में बिहार में हुआ था, और इसी का नतीजा है कि आज के दिन बिहार में हजारों लाखों किसान बिहार को खेती को छोड़ के और दूसरे राज्यों में आके वो मजदूरी करते हैं, क्योंकि वहां पे मंडी सिस्टम नहीं है, वहां पे सरकारी प्रोक्योरमेंट नहीं है। मक्का, वहां की मेन फसल मक्के का सरकारी रेट 1850 रुपए क्विंटल और मक्का बिक रहा है वहां पे 500 से 600 रुपया क्विंटल। इसीलिए सन 2006 के बाद बिहार से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और वहां के किसान खेती छोड़ने को मजबूर हुए। ये जो आपके तर्क है, ये हम सुनते आ रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये आपने भी कई बार सुना होगा कि जो डाउट्स एंड फियर्स है किसानों के मन में, उसको एड्रेस नहीं किया गया। तो आज ये स्थिति आपकी बन गई कि आपको इस तरह का एक एजिटेशन हैंडल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने ड्यू डेलिब्रेशन किया होता, कंसल्टेशन किया होता उन किसानों के साथ जिनके लिए दिस इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड, आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए अफरीदी जी, 2-3 चीजें हम यहाँ पे मिस करते हैं। पहले तो ये जो बिल अभी पास हुए पार्लियामेंट में, ये ऑर्डिनेंस जून से थे, तो ऑलरेडी 7-8 महीने से तो ये लॉ था। फिर डिस्कशन की बात अभी बिल के ऊपर क्यों हो रही है? पहले से जब ऑर्डिनेंस थे तब क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, कांग्रेस के अपने मैनिफेस्टो में एपीएमसी को हटाने की बात है, और हम तो एपीएमसी हटा भी नहीं रहे और एमएसपी को भी लागू रख रहे हैं। तो फिर ये कह रहे हैं कि लिख के दे दो, जो इम्प्लीमेंट कर दिया। और जो 70 साल से जो कानून एमएसपी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से हो रहा है। हाँ, ये बदलाव चाहते हैं, उसको लॉ बनाना चाहते हैं, उसके लिए डिमांड कर ले। मैं किसानों की समस्या के बारे में डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन बिलों के साथ एमएसपी को जोड़ना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। एमएसपी चाहिए, एमएसपी को लीगलाइज करें, यह डिमांड और है, और कई समस्याएं किसानों की, उनके लिए चर्चा करें, वो सब बातें अलग है। लेकिन इन तीनों बिलों को, क्योंकि अभी बिल लाए हैं इसलिए एमएसपी हट गई, इसलिए एजिटेशन कर रहे हैं, यह जो है यह कांग्रेस की राजनीति है। नहीं तो राहुल गांधी अपने गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं और अपना ट्वीट कर रहे हैं। अरे आप समस्या को समझिए, आप कितनी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, 20 साल सिर्फ पंजाब और कांग्रेस रूल स्टेट की बात है नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो भी जुड़ गए हैं, काफी नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स के किसान भी गुस्से। ये नहीं कि सिर्फ पंजाब के फार्मर्स are angry at this point. This is an agitation where different farmers from multiple states are joining in.
मैं आपकी बात को बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। यूपी के फार्मर किसान क्यों गुस्से में हैं आज? देखिए पिछले 20 साल से किसानों की समस्या पे चर्चा हो रही है। सब सरकारों ने घड़ियाली आंसू बहाए हैं और किया क्या है, किसान एक के बाद एक आत्महत्या कर रहे हैं, उनके एमएसपी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही। तो प्रॉब्लम असली में गलत दिशा में किसान के नेता उन्हें ले जा रहे हैं और उनके समस्या का समाधान नहीं कर रहे, अपनी राजनीतिक रोटियां उनकी गरीबी और मुसीबतों पे सेक रहे हैं। नहीं तो 20 साल की सारी रिपोर्ट देख लीजिए, स्वामीनाथन कमेटी, शांता कुमार रिपोर्ट, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, सबने ये कहा है कि एपीएमसी का ऑल्टरनेटिव मार्केट मैकेनिज्म भी हमें खड़ा करना चाहिए। वहां तो रिकमेंडेशन ये तक थी कि एपीएमसी को डिसमेंटल कर दो। हमने किसानों की चिंता को समझते हुए डिसमेंटल नहीं किया है, एपीएमसी को खड़ा रखा है और एमएसपी को भी नहीं हटाया है। ऑल्टरनेटिव एक वैकल्पिक, लेकिन जो सिस्टम आप बना रहे हैं उसमें एपीएमसी का रिडंडेंट हो जाना लाजमी है, ऐसा किसान के जो नेता है वो मानते हैं कि इसमें एपीएमसी बच ही नहीं पाएंगे। Once you open out the market for large scale profiteering, corporate giants will come and lord over the small and marginal farmers. They will not have the wherewithal to even stand up against the big private entities. That is the fear, and you know very well. I want to come across to Abhimanyu Kaur one last time also to understand जो points अभी आपने उठाए। नहीं, let him respond, sir. I will come back to you. अग्रवाल जी ने जो आपके खिलाफ जो बातें की है आप जवाब देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप फाइन प्रिंट आपने पढ़ा नहीं है, एमएसपी को हटाने की बात कहीं नहीं हो रही, एपीएमसी को डिसमेंटल नहीं किया जा रहा है। एक तो ये, दूसरी बात ये कि आप ये नया सिस्टम को ट्राई आउट करने से पहले ही क्यों आप इस पे एजिटेट कर रहे हैं? द प्रूफ ऑफ द पुडिंग वुड बी इन द ईटिंग। अभी ये सिस्टम रोल आउट हुआ नहीं, इट हैज नॉट बीन रियली सेट इन मोशन। हाउ डू यू नो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प द फार्मर्स? अभिमन्यु कोहर, देखिए ये मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये कानून 2006 में बिहार में बन चुका है और बिहार का नतीजा हम देख चुके हैं, जहाँ पे किसान मजदूर बन गए हैं, उनको अपनी खेती छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। तो हम ये नहीं चाहते कि अन्य राज्य के किसानों को भी मजबूर होना पड़े। दूसरी बात जो आप इसमें समझिए कि ये जो स्वामीनाथन कमीशन की बात कर रहे थे ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता, इनको ये नहीं मालूम कि स्वामीनाथन कमीशन ने तो ये भी कहा था कि C2+50% फार्मूले के अकॉर्डिंग आप किसानों को एमएसपी दीजिए, वो तो इन्होंने Okay, I have a reporter on ground. Let's also dip into what's happening in real time, even as we speak. Alok, over to you. Take us through the latest pictures and visuals and talk us through those pictures, please. भाई, please call. Sir, record करना। NH1 पे यही बैठ के इसको चांद करेंगे। Well, Alok is connected to us. He's probably not able to hear me. There is major chaos and commotion. The kind of agitation that we have seen today, the number of methods and means that were used to stop the farmers, whether it is anti-riot gear that the security forces were using, whether it is tear gas being lobbed or water cannons being fired. There was a major face-off that happened between the police and the protesters, and we're still waiting for a peaceful resolution to that crisis. बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ, कैसे आंखें भी लगो। All right, so we'll have to conclude the discussion here. Abhimanyu Koher and Mr. Agarwal, thank you so much for joining us. Gopal Krishna Agarwal of the BJP and Abhimanyu Koher, farmer representative, who talked to us about the important points on both sides of the argument. There is this view that the farmers are being misled
they have not been given the real picture, and there is a false propaganda around the new farm laws. And of course, the farmer leaders are firm in their belief that this cannot protect the interests of the farmers, and therefore the new farm laws must be withdrawn. We leave it at that. Thanks for watching The Big Story this afternoon. News and updates continue on the other side. Stay with us.